इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है पहली बार तपस, वो तपस जिसने अपना लोहा कई अलग अलग जगहों पे मनवाया है। टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से तपस इस समय आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस समय डायरेक्टर ईडी हैं। सर, तपस कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी, और कितनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है जो कि इसको बाकी जो इस समय अवेलेबल यूएवीज हैं, हेरॉन है या फिर बाकी हैं, उनसे अलग करता है? Tapas, if you really look at, this is the first indigenously built medium altitude, long endurance unmanned aerial vehicle, completely by Aeronautical Development Establishment. All the technologies that go into this bird, most of it is built by ADE along with the industry partners. और इस vehicle अब जो आप देख रहे हो, इसको it has got the best of the technologies in the world. Okay, to very quickly give you a glimpse of the technologies that goes into making this bird. First, starting with a multidisciplinary optimized configuration, okay, which is the aero structure to meet the requirements for the mission. That's where the configuration of the bird starts. From there, the entire systems that go into this bird, the flight controls, the avionics systems, the secure data links, and the retractable landing gear systems, the complete mission sensors, what we call as the payloads. Mission sensors and payloads we use interchangeably. Now the electro-optic IR sensors, the IFF TCOS, and the ELINT and COMINT sensors. These are all the sensors when the bird is actually flying in air. These are the ones which actually going to capture the data of the detection, identification, and the recognition of the targets, and transmit those information to the advanced ground control system, which is actually located on the ground. हम इस समय आपको कमांड कंट्रोल सेंटर दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर लाइव फीड, पायलट, मॉनिटरिंग सब कुछ की जा रही है और यहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ऑन ग्राउंड सोल्जर्स, ऑफिसर्स, ओआर को, ताकि ऑपरेशंस पूरा किया जाए। पहली स्क्रीन यहां पर टारगेट को लॉक किया गया, एक हर्ट बना है, उसके अंदर यहां पर संदिग्ध एक्टिविटी दिखी और इसको लॉक करने के बाद जो इस समय पायलट है वो डायरेक्शंस दे रहा है। इसीलिए अब दूसरे तपस को टेक ऑफ करवाने की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं तीसरी तरफ जो इस समय ऑन एयर तपस है उसको भी टारगेट की तरफ लोकेट किया गया है और यही पूरी मॉनिटरिंग और मैपिंग की जा रही है। यहां पर जो मेन एरिया है उसको पिन पॉइंट किया गया, उसे लॉक किया गया, उसके आसपास की पूरी डिटेलिंग और मैपिंग की गई। जो डेटा और साथ में जो ग्राफ है उन ग्राफ्स को इकट्ठा कर कमांड कंट्रोल सेंटर भेजा गया। जो ऑन ग्राउंड सोल्जर्स हैं उनको ये जानकारी दी गई और इसी तरह से ये तपस इस समय भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना का जल्द हिस्सा बनने जा रहा है। सर, कितना इफेक्टिव है तपस और खासतौर पे कमांड कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है रियल टाइम पे जा रही है, या वेदर अगर चैलेंज है बहुत बड़ा तो उससे कैसे निपटा जाएगा? So the unmanned aerial systems में advanced ground control station जो आप अभी हमें देख रहे हैं, it's a very important, it plays a very important role. Now this is a world-class autonomous advanced ground control station built by ADE engineers, and what you see here is a complete information dissemination, and from the target identification to what you can actually see is this is the place where the gentleman is sitting here, is the place where the internal pilot actually flies the bird, and the next bay is the mission control person sits here, and what you see here in this bay is the payload operator who sits and operates the complete information which is acquired when Tapas is flying in air with all the sensors. All that information gets actually downstreamed here, and it is from here we can actually do the geolocalization, target acquisition, target detection, recognition, सब कुछ कर सकते हैं। और this system ये आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सा कदम है ADE का, और ये जो सिस्टम हमने बनाया है it's a world class. The best part of this AGCS is that it can fly all the unmanned aerial vehicles जो हम बनाने जा रहे हैं और फ्यूचर में और भी जो बनेगा वो सब का एक ही एडवांस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से हम उड़ा सकते हैं। इट्स अ रिकॉन्फिगरेबल टू द बर्ड एट एनी गिवन टाइम। सो ये एक महत्वपूर्ण
अगर बोलना है तो मतलब टेक्नोलॉजी का मार्वल है। एक ही AGCS से हम किसी UAV को उड़ा सकते हैं। एंड हियर व्हाट यू सी इज़ कंप्लीट, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफिसर्स कंसोल। यहाँ पे सिस्टम इंजीनियर बैठता है, हर पैरामीटर का उसका स्टेटस क्या है, वार्निंग्स क्या है, कॉशन क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग यू कैन सी ऑल ऑफ दिस। और इसीलिए हम आपको एक बार फिर से बता दें, सबसे पहले यहाँ पर टारगेट लॉक किया गया, एक साथ 2 तपस को फ्लाई किया जा रहा है, एक से टारगेट लॉक किया गया, दूसरे को टेक ऑफ के लिए तैयार किया गया और जो दूसरा थ्रेट असेसमेंट है उसको किया जा रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर में पूरी जानकारी ली जा रही है, इससे ये पता लगता है कि डिटेलिंग क्या है, जो मैप्स इकट्ठे किए गए हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है और ये पूरा एक्टिवेट हो गया है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के तौर पर यहाँ पर मैपिंग की जा रही है। वेदर चाहे जैसा भी हो, क्लाउड फॉर्म है, क्लाउड के बावजूद भी ये जो पूरा एयर स्ट्रिप है उसको लॉक कर रहा है, जो थ्रेट असेसमेंट है उसको देख रहा है, ऊपर जो स्क्रीन पे जो लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड वो आ रहा है और ये डायरेक्शन सीधा ऑन ग्राउंड सोल्जर्स के पास पहुंच रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो असेसमेंट है वो किया जा रहा है कि कौन से एरिया में है, किस तरीके से ट्रूप मूवमेंट है, नियर बाय ट्रूप क्या है। इसके साथ साथ जो थर्मल इमेजेस हैं उसके जरिए भी इसको ये मॉनिटर करते हुए टारगेट को लॉक कर कर एनिमी को ध्वस्त करना, उसकी जानकारी इकट्ठा करना, सर्वेलेंस के साथ साथ मैपिंग करना, ये तपस का मेन चार्टर है और जिसकी वजह से आधुनिक जो वेपन सिस्टम या फिर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आने वाले दिनों में जब ये भारतीय सेना के 60 की संख्या में, भारतीय वायुसेना के 12 की संख्या में और भारतीय नौसेना में 4 की संख्या में जाएगा तो इससे सर्वेलेंस सिस्टम और सशक्त होगा।